Hello everyone, this is Chandan and I welcome to you my channel The Learning Field. Okay, so in this section, in this video, we are going to solve the questions paper of CSIR NET 2020 General Aptitude, and this is the questions paper of 30th November 2020. Okay, so I already solved the questions paper of Feb 2020, the General Aptitude sections from mathematical section, mathematical science, and this is the 30th November questions paper. Okay, there is a request from Akanksha that so please solve the questions paper of 30th November. So for the request, Akanksha, and for all of you, this I think this will be very helpful for you. This will be not only helpful for helpful for the mathematical science student, this is also helpful for physics, chemistry and other science stream CSIR NET aspirant also. Okay, so let's start, and before starting the solution, I am requesting you to all those who are new in my channel, please like the video, comment if you have any doubt in the comment section below, and subscribe the channel. Okay, so let's start with question number 1. Question number 1 says that the first day of the year 2020 was a Wednesday, then the first day of 2021 would be. So this is clearly a calendar problem. Okay, so we know that we have to calculate the odd days. Okay, so in a general year, we know that a general year is of 365 days, but the year 2020 is not a general year, it is a leap year. Okay, why? Since 2020 is divisible by 4 and this is not a century year, so we just have to calculate whether this year is divisible by 4 or not. If this is divisible by 4, then it will be a leap year. Okay, so it is clearly divisible by 4 and 5. Okay, so this is clearly divisible by 4. That means the year 2020 is a leap year. Okay, and in leap year we know that a leap year will have 366 days. Now if we calculate the number of odd days, how to calculate the number of odd days? That means if we divided this 366 by 7, okay, 366 by 7, then we get 2 as a remainder. Okay, so 2 as a remainder means there are 2 odd days in this year. And here one more concept is that if for a general year, if the first day of the year is Wednesday, for a normal year, then the first day of the next year will be the next day of Wednesday, that means the Thursday. Okay, but this case is for a normal year, but this is a leap year, and here we get 2 odd days, and for normal year there is 1 odd days. Okay, and there is 2 odd days, that means the 2 days next to the Wednesday will be the required answer. Okay, so Wednesday, then Thursday, and then Friday. Okay, Wednesday plus 2 days, that means Thursday and Friday, therefore Friday here is the correct answer. Okay, and one more request, that those who are want to learn about the calendar problems, I'll make the videos on calendar problems. I'll share the link in the description and here also in the iTag. You can check those videos also for more problems on calendar. Okay, so next question number 2. Question 2 says that in an examination, each of the 2 brilliant students got 100 out of 100 and each of the remaining 6 students scored less than 12. Okay, there is no provision of getting negative marks if n is the median score of the students and m equal to the mean score of the students, then which of the following is true? Okay, so देखो, therefore here number of students is clearly, total number of students is 6. Okay, from the 6 students, the 2 students got 100 and 100, so 100 plus 100 is the marks of 2 students, brilliant student, and remaining 6 student scored less than 12. Okay, suppose that means total score of the 6 student, if they got 12 in each, so then the marks will be 6 into 12. Okay, that means this is clearly 72, but the students does not get this marks 12. Okay, so suppose let us assume the 6 students, remaining 6 students got, okay, 11 marks. Okay, highest marks is 11, which is less than 12. Suppose, we just suppose it is not necessary that you will be take 11 marks only, you can take any other data. Okay,
So if we take these 11 marks for 6 students, then the total marks 6 into 11. Okay, therefore this is equal to 266 marks in total. Okay, for total 8 student here, 8 student. For 8 student we get the total marks is this. Okay, now if we calculate the mean, that is simple mean means here the notation of the mean is m. Okay, so m equal to total marks of the student 266 by the number of student is 8. Okay, so this is equal to, clearly the value is 3 and 26, that means 3, so 33 point something. Okay, and medians, the value of the median, if we write the scores, suppose 11 11 11 11 11 11 100 and 100, then here the data set is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. there are total 8 वैल्यू ऑफ द डेटा. ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, जो मिडिल का वैल्यू होगा वो होगा इसका मीडियन. ठीक है, तो देखो यहाँ पर मीडियन वैल्यू जो होगा इस दोनों का, क्योंकि यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है. ठीक है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए जो मीडियन होता है n/2 + 1 का नंबर ऑफ टर्म्स n/2 एंड n/2 + 1 जो टर्म्स होता है, इस दोनों टर्म यहाँ पर मीडियन होता है. ठीक है, तो देखो इसका जो मीडियन होगा क्या होगा, इसका मीडियन जो होगा 11 + 11/2, that means this is clearly 11, and now this is equal to suppose n. Okay, given that n is the median of the student. Now we go to the options. देखो यहाँ पर m is greater than, फर्स्ट जो ऑप्शन है m is greater than 2n. so m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू आया लगभग 33 के आसपास रिगार्डिंग मान के चलो, एंड n का जो वैल्यू आया वो आया क्या है 11 सपोज. ठीक है, क्योंकि मीडियन कैसे निकलता है, यहाँ पे जो डेटा वैल्यूज है यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, एंड मिडिल का जो वैल्यू आएगा वो होता है मीडियन. ठीक है, एंड यहाँ पे मिडिल में 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिया, मीन लिया इन दोनों वैल्यू का. ठीक है, तो ये मीडियन होगा. ठीक है, तो देखो m इज ग्रेटर देन 2n, सो 2n मीन्स, देखो 2n मीन्स यहाँ पर 22 अकॉर्डिंगली. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, आई विल जस्ट टेक द वैल्यूज रिगार्डिंग द यहाँ पर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो देखो एम क्लियरली एम, देखो एम का वैल्यू 33 एंड 2n का वैल्यू 22, सो 33 इज क्लियरली 22 ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली. ओके, यहाँ पर वैल्यू कुछ मतलब पॉइंट में इधर उधर हो सकता है. ठीक है, तो मान के चलो लगभग ऐसे ही वैल्यू आएगा. तो ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ गया. ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, मिल्क राइजेस रैपिडली एट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज व्हाट इज द, यहाँ पर क्लियरली 3 ऑप्शंस है, एंड दिस इज द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका, इट्स बल्क डेंसिटी रैपिडली डिक्रीजेस एंड इट्स बिकम्स मोर buoyant एट द बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो ये आप लोग जो जनरल साइंस और क्लास 10 या जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाउंस ही. ओके, सो ये मोर फिजिक्स रिलेटेड भी आप सोच सकते हो यहाँ पे. ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी यहाँ पे. ठीक है, एंड यहाँ पर जो और ऑप्शन से बियॉन्ड एट द बॉइलिंग, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है राइज टू द टॉप ऑफ, मतलब ये जो मिल्क हम लोग जब मिल्क को फायर से मतलब गर्म में करता है ना, तो ये सिचुएशन बाउंसी का होता है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग आपका होम में. ठीक है, ये होता है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉट्स आर प्लेस्ड एट इंटरसेक्शंस ऑफ द ग्रिड. ओके, सो दीज आर द डॉट्स सपोज. ठीक है, दिस देयर आर 9 डॉट्स क्लियरली. ठीक है, एंड जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉ बाय जॉइनिंग दिस डॉट्स. ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 डॉट्स फ्रॉम, देखो 3 डॉट्स को चूज कर लो, 3 डॉट्स, ए 3 डॉट्स को चूज करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा. ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होता है, जनरली ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होता है. ठीक है,
तो 9 जो वर्टेक्स है यहाँ पर 9 वर्टेक्स को किस तरीके से चूज कर सकते हैं हम लोग 9C3 फॉर्मेट में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 9C3 मतलब इसका जो वैल्यू होगा तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल एंड 2 4, यहाँ पर जो होगा 84। बट 84 यहाँ पे आंसर नहीं है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 84 है बट 84 यहाँ पे आंसर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग टोटल जो है 9 डॉट्स लिया है। बट देखो 9 से 3 जो एक ट्रायंगल बनेगा, बट देखो ये तीनों केस देखो ये जो 3 डॉट्स लेते हैं हम लोग, ये जो एज का इस एज का जो 3 है, मतलब एक रो जो है एक रो में जो 3 डॉट है उस जो 3 रो में कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा ऐसे जो डॉट्स है। एंड सिमिलरली ऐसे जो डॉट्स आएगा एक कॉलम वाइज, तो ये जो तीनों आएगा इस तीनों में भी कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब कितना यहाँ पर एंड जो डायगोनल है, ठीक है, तो देखो ये जो डायगोनल का 3 डॉट्स है एंड ये जो डायगोनल का 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स के कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डॉट्स मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हट गया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 ट्रायंगल्स यहाँ पे कम होगा, तो मतलब इसका जो आंसर होगा 84 माइनस 8। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 76। ओके, तो इसका जो आंसर होगा 76। क्लियरली ये क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ ग्रिड होगा, नंबर ऑफ ग्रिड यहाँ पर जब आप लोगों को क्वेश्चन में घुमा दे सकता है। देखो कैसे क्वेश्चंस को, देखो ट्रायंगल के बदले में बोला क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे 9C4 लिख सकते हो, 9C4 एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल मतलब जो होगा ऐसे जो होगा इस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे तो 3x3 है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे करना होगा इस तरीके का प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 76। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ गर्ल running at a constant speed along a straight path to catch a bus in the same direction, in that is same distance away from her and stationary मतलब bus एक जगह पे fixed है। ठीक है, and before she reaches the bus it accelerates and away from her. Okay, which of the following graphs is the possible dissipation of their motion? ठीक है, तो देखो एक तो होगा जो इसका जो बोला है गर्ल का तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, गर्ल रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा क्लियरली। यहाँ पे देखो चारों के चारों गर्ल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो गर्ल्स एंड बास, जो गर्ल्स एंड बास है तो गर्ल्स का तो स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं है। मतलब चारों के चारों ऑप्शन में ही देखो यहाँ पे गर्ल्स का चारों के चारों ऑप्शन में ही स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है, अब देखो बास फास्ट जो बास था, बास यहाँ पर फिक्स था, गर्ल भी स्टार्ट किया एंड बास भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो कांस्टेंट स्पीड बट सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हार्ट स्टेशनरी बिफोर द सी रीचेस। और एक चीज यहाँ पे देखो जो कि है यहाँ पे एक बोला नहीं है कि बास एंड गर्ल एक जगह से ही स्टार्ट किया। ठीक है, बट यहाँ पर जो ग्राफ ए में देखो, ग्राफ ए यहाँ से स्टार्ट किया गर्ल एंड यहाँ से भी बास भी स्टार्ट किया। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको क्रॉस करके चला गया, तो ये ग्राफ तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ये यहाँ पर बोला है कि ये देखो बास भी फिक्स था, यहाँ पर गर्ल भी फिक्स था। ठीक है, बट ये यहाँ पर गिवन नहीं है कि बास एंड जो गर्ल है वो सेम जगह से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो फॉल्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो जो डी ऑप्शन से, डी ऑप्शन में क्या है, बास का जो वेलोसिटी वो भी स्ट्रेट है, मतलब बास सेम स्पीड में जा रहा है, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोला है बास फास्ट फिक्स था, देन आफ्टर रीचेस द गर्ल द बास एक्सेलरेट्स एंड वो बास चला गया। ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों के पास आया, मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, तो देखो इस दोनों में कौन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर और एक चीज देखो, देखो बी ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर जो बास है वो यहाँ से स्टार्ट किया एंड चला गया, एंड गर्ल भी यहाँ से स्टार्ट किया, बट ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखो ये तो मतलब और एक चीज देखो यहाँ से जो बास जा रहा है, ठीक है, मतलब गर्ल यहाँ पे पहुंचने की पहले ही वो चला गया, बट ये इस सिचुएशंस को इम्प्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड ये दोनों सेम जगह से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ग्राफ से जो गिवन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑप्शन करेक्ट क्या बनेगा, सी। देखो दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन। देखो यहाँ पर क्यों,
क्योंकि देखो बास फास्ट था यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है, एंड गर्ल था यहाँ पर, ठीक है। तो गर्ल यहाँ से कांस्टेंट में जा रहा है एंड बास फिक्स था, बट जब ये चला गया तब बास यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ से कांस्टेंट आ रहे, आते आते ये एक्सीलरेट करके ये ऐसे भाग गया। मतलब गर्ल जब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर था गर्ल, तो बास ये एक्सीलरेट करके चला गया, ठीक है। मतलब गर्ल यहाँ पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर मीटअप पॉइंट होता, ठीक है, जनरली, बट यहाँ पर गर्ल पहुंचने की पहले ही बास यहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन होगा और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ वुड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, this is a very interesting problem from probability. Okay, the probability of selection Alex for a post is 9/11 and Gafur is 5/14. The selection is independent of each other. What is the probability of selection only one of them for the post? ठीक है, तो देखो सपोज यहाँ पर टू जो पर्सन गिवन है एलेक्स एंड गाफूर, ठीक है। तो देखो जो पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कमेटी क्या करेगा, एक ही बंदे को सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, सपोज ये सिलेक्ट हुआ एंड जो होगा गाफूर सिलेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, जी कॉम्प्लीमेंट में गाफूर नहीं सिलेक्शन, एंड और एक सिचुएशन क्या बन सकते, और एक सिचुएशन क्या बनता है कि एलेक्स सिलेक्ट नहीं हुआ एंड गाफूर सिलेक्ट हुआ। तो देखो ये जो दो केस हुआ, इस दोनों केस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ओनली वन सिलेक्शन का, मतलब ये क्या कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि ये जो दोनों मतलब कंडीशंस यहाँ पर लिखा हूं मैं, ये दोनों इंप्लाई करेगा कि ओनली वन पर्सन का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, और होगा, ठीक है, आइदर होगा क्या, एलेक्स सिलेक्ट होगा और गाफूर सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, एंड मीन्स वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन एंड और मीन्स वी नो एडिशन। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन मीन्स प्लस, यहाँ पर लिख सकते हो प्लस, ठीक है। और मीन्स यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी। एंड देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, टू इवेंट बोला है, सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी सी। हम जानते हैं कि सिंपल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन है पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, if A and B are independent event then this is the formula. So plus probability of A complement and probability of G, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो probability of A देखो गिवन है Alex, तो probability of A यहाँ पर क्या है, probability of A है 9/11, ठीक है, एंड probability of A complement क्या होगा, तो 1 - 9/11 होगा, क्योंकि टोटल probability तो 1 होता है, दैट मीन्स ये होगा 2/11, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गाफूर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गाफूर होगा 5/14, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गाफूर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 - 5/14, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे जो होगा 1 - 5/14 दैट इज 7 8 9 9/14। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स 8/11 इंटू गाफूर का कॉम्प्लीमेंट 9/11 सॉरी 9/14 प्लस, ठीक लिखा 8 एंड 9/11 प्लस जो होगा 3 एलेक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या था, एलेक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब सॉरी ये होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 8/11 है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 8/11 होगा, ठीक है, ये 8/11 मतलब ये होगा 3/11 एंड ये 5/14, ठीक है। तो देखो 8/11 9/14 प्लस तो 3/11 इंटू 5/14, ठीक है। तो 72/84 प्लस सॉरी 84 नहीं 154 प्लस 15/154, तो इसका जो आंसर होगा 87/154। ओके, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिस इज क्लियरली सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स प्रोबेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, so going to the next question, the question 7,
सेज दैट, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, द शेडेड रीजन, shaded circles having the diameter of 1, 0.5, 0.25 and 0.125 centimeter inside a square of side 1 centimeter, the ratio of the shaded area A and B is 1, then the ratio of the shaded area in C and D would be। ये एक वेरी मतलब क्या है सिंपल प्रॉब्लम है इफ यू नॉट थिंकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, ओके, क्योंकि मैथ से सोचोगे मतलब मैथ से कैलकुलेशन करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जनरल CSIR नेट का जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है वो सोचने का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैथ जितना कम लगाओगे उतना आप लोग फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो डायमीटर एंड रेडियस के रिलेशन सेम है, मतलब जो सर्कल का क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है इसका एरिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर r जो डायमीटर एंड r/2 का डायमीटर मीन्स 2r एंड रेडियस मीन्स r, ठीक है। तो ये सपोज हम लोग इसको रेडियस मान के ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेशियो निकलना है, ठीक है, रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो रेडियस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रेडियस है 1 यूनिट, 0.5 यूनिट, 0.25 यूनिट एंड 0.125 यूनिट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर ये जो बड़ा वाला एरिया है तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर आएगा, ठीक है, पाई इंटू 1 स्क्वायर आएगा। सपोज इसको r ले लो तो ये क्या आएगा रेडियस r, ये आएगा, ये इसको ले लो r, इसको r ले लो, ये आएगा क्या, इसके डबल है ये 2r, इसका डबल है ये 4r, इसका डबल है ये 8r, ठीक है। तो इसको जो मतलब एरिया आएगा फर्स्ट ए का तो ये क्या आएगा 8r का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, 8r का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये क्या आएगा 64 पाई r स्क्वायर, ठीक है। r ये वाला वैल्यू r सबसे छोटा वाला का जो रेडियस है इसका, ठीक है, इसका जो है वो हम लोग r ले लिया, उसका बड़ा वाला 2r, उसका बड़ा वाला रेडियस 4r एंड उसका बड़ा वाला रेडियस 8r, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट जो b आएगा, b का क्या आएगा एरिया, b का जो एरिया आएगा वो आएगा देखो पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 16 पाई r स्क्वायर, ठीक है। देन उसके जो छोटा है ये वाला, ये जो दो है इस दोनों का एक एक का क्या आएगा, इसको सपोज c मान लेते हैं, ठीक है, ये जो ये वाला है ये मान लो a, ये साइज जो है ये b वाला, ये जो साइज है ये c वाला, तो इसका क्या आएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। एंड इस सबसे छोटा वाला है इसको d पर मान लो, ठीक है, तो d का एरिया क्या आएगा पाई इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो द रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया इन C एंड D वुड बी, ठीक है। तो देखो C एंड D वुड बी, तो देखो C के जो एक एरिया है जस्ट मिनट, तो देखो C एंड D वुड बी, ठीक है। देखो ये जो है C एंड D, C मतलब ये ऑप्शन C बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो C में जो बड़ा वाला एरिया है उसका मतलब 3 साइड शेडेड है, ठीक है, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसका 3 साइड मतलब शेडेड है, ठीक है, तो 3 साइड शेडेड है, मतलब यहाँ पर देखो आ जाओ C का कितना आया, तो आया जो C ऑप्शन से तो बड़ा वाला सर्कल मतलब ये पोर्शन, इसका जो टोटल एरिया है वो 64 पाई आवर्स का, एंड इसका 3 पार्ट का कितना आएगा, मतलब 4 पार्ट का टोटल है 64 पाई आवर्स का, ठीक है। तो 3 पाई का आएगा क्या, 4 से डिवाइड करो इसको, क्या आएगा 4 16 जा, देन इसका 3 भाग लेके मतलब क्या आएगा 3 इंटू 16 जा, मतलब 48 पाई आवर्स का रहेगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा 48 पाई आवर्स का रहेगा, ठीक है। ना यहाँ पर आ जाओ 48 पाई आर स्क्वायर, ना यहाँ पर दो मतलब बी जो एरिया लिया था यहाँ पे बी वाला, ये वाला था बी, तो इसका एरिया क्या है 16, तो मतलब 2 इंटू क्या आएगा डी में टोटल एरिया कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पर और 2 है प्लस 2 इंटू ये वाला किया था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, एंड 8 है यहाँ पर, देखो 8 सबसे छोटा वाला, तो प्लस 8 इंटू क्या आएगा, देखो इसका जो था पाई आर स्क्वायर, ठीक है 8 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया टोटल कितना आया 16 टू 32, 32 प्लस 8 मतलब 48 आ गया। तो देखो टोटल रीजियन जो एरिया जो है सी ऑप्शंस का जो रीजियन है वो है 48 पाई आर स्क्वायर, एंड डी ऑप्शंस का जो टोटल एरिया आया वो भी आया 48 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका दो रेशियो ले लो, 48 पाई आर स्क्वायर 48 पाई आर स्क्वायर से, मतलब यहाँ पर रेशियो आएगा 1 क्लियरली, ठीक है। तो ऐसे इस ये जो प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर, मतलब ये जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर करके आप लोग एरिया कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है यहाँ पर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी एक जनरल साइंस आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर दैट कैन बी फिटेड इनसाइड ए सर्कल ऑफ सम फाइनाइट रेडियस डी इज एट द मोस्ट। ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब इसका एक ही फॉर्मूला है जो है ऑप्शन नंबर ए, पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, ठीक है। ये आप लोग इनइक्वालिटी टाइप का एक है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, अपना अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, द कोडिंग जीन्स फ्रॉम अ टीनी फंक्शन फ्रैक्शन अबाउट 2% of total human genome. If the total human genome is written as a pack of 50 cards, the number of cards corresponds to the coding genes would be, ठीक है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर, कोडिंग जीन्स फ्रॉम ए टीनी फ्रैक्शन अबाउट 2% of total human genome, the total number of human genome on a 52%, मतलब टोटल ह्यूमन जीनोम 100 होगा तो कोडिंग जीन कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इफ द टोटल ह्यूमन जीनोम इज रिटन ऑन ए पैक ऑफ 50 कार्ड, मतलब नंबर ऑफ जीनोम का क्या मतलब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 50 जीनोम का बात कर रहे हैं, मतलब 50 जीन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द नंबर ऑफ कार्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू कोडिंग जीन, 100% में 2 होता है कोडिंग जीन, 50 में कितना होगा, 50 नंबर ऑफ कार्ड मीन्स 50 ह्यूमन कोड मतलब जीन, तो यहाँ पे कोडिंग जीनोम कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 50% का 2% एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आंसर क्या होगा, ये आप देख के बोल सकते हो कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट ये सीएसआर नेट का ऐसे ही प्रॉब्लम दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए यहाँ पर 1 कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये एक मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम सोच सकते हो आप। देखो 4 लोकेशंस ए बी सी डी आर अलोंग द स्ट्रेट रोड, distance between A and C is 30 kilometer, and a bus from a bus starts at 8 am to reach B, and another bus from C starts at 8:30 am to reach D, ठीक है। टाइम कितना है इसका 8:30 am, and the bus moves away from A, मतलब in the same direction, A से same direction में जा रहा है, ठीक है, with a speed the fast being the double of the सेकेंड, मतलब फास्ट बस का जो स्पीड है वो सेकेंड बस का डबल है, ठीक है। एंड दे मीट एट 9 AM एट ए प्लेस कवरिंग 80% ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस दे आर टू ट्रैवल, मतलब टोटल जो डिस्टेंस बस दोनों को जाना है उसका 80% कवर होने के बाद वो दोनों बस मीट कर रहे हैं, टाइम क्या है 9 AM है, ठीक है। देन द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। देखो यहाँ पर जो लोकेशन से ए बी सी डी गिवन है, बट ये नहीं बोला है कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम का मैं स्टॉप हो गया था, ठीक है, बार बार मैं कर रहा था इस प्रॉब्लम का सलूशन, तो मेरा आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसे सोचा। देखो आप लोग कैसे सोचो कि ए बी सी डी बोला है मतलब ए देन बी देन सी देन डी, ऐसे ही सोचोगे, जनरली ऐसे ही सोचोगे, ठीक है। तो यही इसका गलत है, गलत मतलब मैं इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व ट्राई कर रहा था, ये यहाँ पर मेरा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे मतलब लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है। ए यहाँ पर लो, ठीक है, ए से जा रहा है, ठीक है, ए से जा रहा है, बट बाकी तीनों के तीनों फिक्स नहीं है, ठीक है। और एक जो बात स्टार्ट किया है वो सी से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड बी एंड डी भी फिक्स नहीं है, ठीक है, बी एंड डी भी फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो बी एंड डी कैसे होगा, देखो तो ये बस यहाँ से स्टार्ट किया है 8 AM में एंड यहाँ पर 8:30 AM में, ये भी फिक्स नहीं है। मैं तो यहाँ पर सी को यहाँ पर लिया हूँ, तो देखते रहो ये
ठीक होता है कि नहीं, नहीं तो फिर से अब मतलब चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो सपोज वी आर टेक the bus meet at this position suppose P which is a distance x किलोमीटर from C, ठीक है। तो देखो जो बस 2 है ये यहाँ से स्टार्ट किया बस 2 एंड बस 1 स्टार्ट किया यहाँ से बस 1, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर P टाइम कितना हुआ 9 AM में, ठीक है। तो देखो जो बस 2 वो 30 मिनट्स में ट्रैवल किया, ट्रैवल्स x किलोमीटर इन हाउ मेनी टाइम, 8:30 से स्टार्ट किया 9 में मीट किया, तो हाउ मेनी टाइम द बस ट्रेवल्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट्स क्लियर ट्रेवल्स, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बस 2 क्या होगा, तो 30 मिनट्स में x गया मतलब 1 आवर में कितना जाएगा 2x जाएगा, ठीक है। 30 मिनट्स में जाएगा तो x तो 1 आवर में 2x होगा, तो 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ ए एंड सी का डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, ठीक है 30 किलोमीटर। देखो ए एंड सी का डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है मैं इसको देखो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है यहाँ पर 30 किलोमीटर, अच्छे से समझना है इस प्रॉब्लम को। तो बस 1 कहाँ तक गया, पी तक गया, तो बस 1 ट्रेवल्स एंड मीट 9 AM में किया मतलब 1 आवर ट्रैवल किया बस 1, ठीक है। तो बस 1 ट्रेवल्स 30 प्लस x किलोमीटर इन 1 आवर, तो बस 2 का बस 1 का वेलोसिटी की यही इस बस का वेलोसिटी है, ठीक है। बस 2 का वेलोसिटी जो होगा वो 30 प्लस x है, क्योंकि ये तो 1 आवर में इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो मान लो ये इसका वेलोसिटी है। एंड और एक जो कंडीशंस गिवन है वो देखो क्या है, द वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है और द फास्ट बस इज डबल ऑफ द सेकेंड बस, मतलब क्या है VB1 इक्वल टू 2 इंटू VB2, ठीक है। ट्वाइस होगा बस 2 का वेलोसिटी का, तो बस ये होगा 30 प्लस x दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2x, ठीक है। तो देखो 30 प्लस x दिस इज इक्वल टू 4x, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया वो आया 10 किलोमीटर, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है यहाँ पर B एंड D को हम अभी भी नहीं पुट किया है, ठीक है। तो देखो आप देखो जो यहाँ पर बोला जो है क्या है, ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया बस 1 एंड बस 2, तो बस 1 कितना कवर किया 30 प्लस x, मतलब यहाँ पर आ जाओ, तो बस 1 कवर किया 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड बस 2 कवर किया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 40 किलोमीटर है ये बस 1 का जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा, जो टोटल ट्रैवल करना होगा उसका 80% है, एंड ये बस 2 का भी 80% है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर गिवन है, आ जाओ। तो 40% बस 1 ट्रैवल किया 40 किलोमीटर एंड बस 2 ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, मतलब ये जो 40 किलोमीटर है ये इसका 80% है, मतलब इसका 100% कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे 80%, तो 100% मतलब 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 20 टाइम्स, एंड यहाँ पर क्या है ये 80% गिवन है, मतलब इसको 4 से डिवाइड करो कितना आया 10 10 10 10 आया, मतलब एक 10 मतलब 20%, 1 जो 10 है इसका मतलब क्या है 20%, मतलब 5 10 होगा तब ये क्या होगा 100% होगा, ठीक है। तो मतलब 5 10 मीन्स क्या है 50, ठीक है। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है बस 1 का टोटल ट्रेवल्स कितना होगा, टोटल ट्रेवल्स कितना होगा, ये होगा 50 किलोमीटर, ठीक है। एंड सिमिलरली बस 2 का 80%, ये मतलब है 10 किलोमीटर मतलब 80%, तो 100 किलोमीटर कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड करो एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 100%, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे 2.5 आएगा एंड 5 से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ट्रेवल्स बस 1 एंड बस 2 का जो टोटल ट्रेवल होगा वो क्या होगा 5 इंटू 2.2, मतलब ये होगा जस्ट मिनट, ये होगा 12.2,
जस्ट मिनट, ये होगा 12.5 किलोमीटर। ठीक है, नाउ आ जाओ यहाँ पर, देखो बास 1 का टोटल ट्रैवल पाथ कितना है 50 किलोमीटर एंड बास 2 का है 12.5 किलोमीटर। ठीक है, तो बास ए देखो, ये बास स्टार्ट्स 8 AM टू रीच बी, मतलब ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना है, आ जाओ 50 किलोमीटर एंड अनदर बस स्टार्ट सी टू रीच बी, तो सी डी का डिस्टेंस है 12.5 किलोमीटर। तो सी एंड डी कहाँ पे होगा आप बोलो, तो देखो डी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर होगा क्लियर, क्योंकि सी एंड डी का डिस्टेंस कम है एंड ए एंड बी जो होगा वो होगा यहाँ पर, ये टोटल है 50, बस एक 1 को ए से बी तक जाना है, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर एंड सी एंड डी में कितना जाना है, इसको जाना है सी एंड डी का जो डिस्टेंस है 12.5 किलोमीटर। ठीक है, नाउ और एक चीज देखो, यहाँ से गिवन था कि ए एंड सी का जो डिस्टेंस है वो था 30 किलोमीटर ए एंड सी का, तो सी एंड बी का कितना होगा 50 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ठीक है, तो सी एंड ये जो सी से ये जो सी है, सी से जो डी बी तक डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर एंड सी से डी तक डिस्टेंस है 12.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है बी एंड डी का डिस्टेंस, बी कहाँ पर है, ये जो बी है एंड डी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा 20 माइनस 12.5। ठीक है, तो 7.5 होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, next question number 11. Question number 11 says that a box contains 3 white ball and 5 black balls. What is the probability of choosing 1 white and 1 black ball if the 2 balls are drawn at random 1 by 1 with replacement? ये भी वो जो मतलब जो probability का क्वेश्चन किया जस्ट आगे वाला सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जो फास्ट ड्रॉन होगा 2 ड्रॉन होगा, यहाँ पर एक ड्रॉन होगा, यहाँ पर एक ड्रॉन होगा। फास्ट जो ड्रॉन होगा वहां से क्या क्या बॉल आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, सिमिलरली दोनों केस ही आ सकते हैं। तो फास्ट ड्रॉन में सपोज यहाँ पर व्हाइट आया एंड यहाँ पे ब्लैक आया एंड यहाँ पे फास्ट ड्रॉन में ब्लैक आया एंड यहाँ से व्हाइट आया, ऐसे 2 सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, मतलब टोटल जो सिचुएशन बन सकते हैं वो ये बन सकता है। ठीक है, तो टोटल 3 व्हाइट बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसके आंसर क्या बनेगा तो फास्ट बॉल आ सकता है एंड विथ रिप्लेसमेंट है यहाँ पर, मतलब एक बॉल को उठाया देखा वो कौन सा है फिर से डाल दिया, फिर से एक को उठाया देखा वो क्या है फिर से डाल दिया, रैंडम प्रोसेस किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा जस्ट ए मिनट तो फास्ट बॉल व्हाइट आ सकता है एंड सेकेंड बॉल ब्लैक आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है एंड और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, फास्ट बॉल ब्लैक आ सकता है एंड सेकेंड बॉल व्हाइट आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ले लो जस्ट एंड यहाँ पर और है, और मतलब क्या है प्लस होगा, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W, ये यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट केस है, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब बॉल जो होगा एक उठाया फिर से देखा डाल दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे सेम ही रहेगा, ये एक मतलब पॉइंट है। जब विद रिप्लेसमेंट का केस आता है तब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखो, ये सब 2 बॉल्स है, यहाँ से एक बॉल को उठाया देखा कौन सा कलर आया फिर से यहाँ पर डाल दिया, ये होता है विद रिप्लेसमेंट केस। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का केस क्या होता है, ये बॉल सपोज यहाँ से उठा लिया ये और फिर से यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे और नेक्स्ट वो टर्न में जो एक ही बॉल रहेगा। ठीक है, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। ठीक है, तो ये तो सिंपली क्या बन गया 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W क्या है, मतलब व्हाइट का प्रोबेबिलिटी 3 व्हाइट बॉल है एंड टोटल बॉल है 5, मतलब PW होगा क्या होगा 3/8 एंड P व्हाइट ब्लैक कितना होगा जो होगा ये होगा 5 टोटल बॉल से 8। विद रिप्लेसमेंट का केस में ये जो नीचे वाला होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये सेम ही रहेगा। ठीक है,
तो 3/8 3, तो 2 इंटू 3/8 इंटू 5/8, तो क्या होगा 15 30/64, 30/64 मतलब ये होगा 15/32। ठीक है, 15/32 ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 says that along the common radial direction from the center of the concentric circles of radii 100 meter and 150 meter, a point A on the circumference of the inner circle and the point B on the circumference of the outer circle, the point A and B start moving on the respective circles with a speed of 8 meter per second at the same instant but in opposite direction. Okay, so after how many seconds approximately would they meet across each other along a common radical direction only? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एक लाइन मतलब सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज दिस इज द इनर रेडियस, इनर सर्कल एंड just a second, this is the outer circle. Okay, suppose this is this type of problems. Okay, so देखो कैसे बनता है। तो ये सपोज दिस इज द रेडियस 100 एंड दिस इज द आउटर सर्कल विद रेडियस 150। तो जो इनर सर्कल का जो होगा, सपोज दिस इज ओ सेंटर। ओके, तो इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल, सपोज दिस इज, तो इनर सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, देखो 2 पाई होता है इसका फॉर्मूला, तो 2 पाई इंटू 100 मतलब 200 पाई सेंटीमीटर होगा इसका सरकमफ्रेंस। एंड आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई इंटू 150, गिवन है यहाँ पर रेडियस 100 एंड 150, सो 300 इसका 300 पाई इसका सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, तो सपोज द पॉइंट ए इज हियर एंड बी इज हियर। ठीक है, तो ए इधर से जा रहा है इस डायरेक्शन में एंड बी जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज इन दिस पॉइंट, ठीक है, दे विल मीट अगेन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो इसको मान लो ए एंड इसका सपोज ए डैश मान लो, यहाँ इस पॉइंट को ए डैश, तो ए डैश पॉइंट में मीट कर रहा है एंड इसको पकड़ लो पी डैश पॉइंट। ठीक है, तो ए यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, पी लिया नहीं, तो ए पी ए डैश एंड बी क्यू बी डैश। ठीक है, तो ए पी ए डैश, ये फास्ट जो ये और पार्टिकल ए है वो मूव कर रहा है कितना, ए पी ए डैश। ठीक है, तो इस पॉइंट में देखो क्या होगा, यहाँ पर सेम क्या रहेगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल इस पॉइंट में भी सेम रहेगा। ठीक है, तो और एक जो फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ा था हम लोग, वो क्या था, ए सी इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला। ठीक है, ए सी इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला क्या था, ए था आर्क लेंथ, आर था रेडियस एंड थीटा इज द एंगल विच मेक्स द आर्क लेंथ विद दिस। ओके, तो देखो ये फास्ट जो पार्टिकल आया वो कितना, जो पाथ, ये जो पाथ मतलब ये यहाँ तक जो पाथ आया वो पाथ का लेंथ सपोज एक्स पर मान लो। ठीक है, तो ए पी ए डैश इसको मान लो एक्स। ठीक है, तो ये जो पाथ होगा, ये पाथ भी यहाँ पर, ये जो पाथ होगा ये जस्ट सेकंड, इस पाथ का लेंथ कितना होगा, इसको सपोज पी डैश मान लो आर्क लेंथ, तो ए पी डैश ए डैश इसका क्या होगा, टोटल था सरकमफ्रेंस 200 पाई, तो 200 पाई माइनस एक्स होगा इसका आर्क लेंथ। ठीक है,
नाउ आर्क लेंथ, यहाँ पर नाउ थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा एस मतलब आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से थीटा, जो थीटा दोनों केस में थीटा का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इनर सर्कल का केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, जो होगा देखो ये है आर्क लेंथ 200 पाई माइनस एक्स बाई आर मीन्स क्या है रेडियस, रेडियस मतलब 100 इनर सर्कल की केस में, ठीक है। थीटा इनर, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इस केस में ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज सेम एज द लेंथ ऑफ फास्ट पार्टिकल कवर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन मतलब सेम लेंथ यहाँ पर कवर कर रहा है दोनों पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखो सेम इंस्टेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो इसका जो लेंथ होगा मतलब बी क्यू बी डैश, बी क्यू बी डैश, ये क्या होगा एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा। एंड इसका जो थीटा, इस केस में थीटा क्या होगा आउटर, ये आर्क लेंथ बाई रेडियस, तो एक्स बाई देखो ये सेम डायरेक्शन में ले लिया, ये जो है इसके अंदर थीटा सेम है, ठीक है, मतलब इस लेंथ एंड ये लेंथ, ठीक है, एक्स बाई 150। तो ये जो थीटा का दो वैल्यू है, इस थीटा दो वैल्यू को सेम कर दो, ठीक है। तो 200 पाई माइनस एक्स बाई 100, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 150, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा देख लो एक बार, 2 3, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा जस्ट मिनट, तो 600 पाई माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, सो 5x इक्वल टू 600 पाई, मतलब x का जो वैल्यू आएगा 120 पाई, ठीक है। तो x आ गया डिस्टेंस। नाउ क्या निकालना है इसका, जस्ट मिनट, मेगेन अप्रोक्सीमेटली अराउंड कॉमन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो रेडियल डायरेक्शन होगा एंड यहाँ पर x तो आ गया लेंथ, टोटल लेंथ। नाउ यहाँ पर ये जो गिवन है देखो वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर स्पीड गिवन है, तो मतलब कितना लेंथ तक हो जाएगा, तो ये 8 जो मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से डिवाइड कर दो 120 पाई को, जो लेंथ होगा रेडियल जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, रेडियल मतलब जो लेंथ होगा वो होगा 120 पाई बाई 8, ठीक है, दैट मीन्स 15 पाई, 15 पाई मतलब 15, सॉरी ये तो टाइम, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, टाइम मतलब टोटल लेंथ बाई वेलोसिटी 15 पाई, दिस इज इक्वल टू सॉरी 15 इंटू 3.14 विच इज नियरली इक्वल टू 47 सेकेंड, 47 सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 47 सेकेंड, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन देखो, an isosceles triangle ABC inside a square of side 1 centimeter where AD equal to BD, AD equal to BD, okay, and this is a side with square 1 centimeter length, ठीक है। then which of the following represent the cumulative area of the square and the triangle। तो देखो यहाँ से स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जितना मतलब साइड बढ़ रहा है, लेंथ तो यहाँ पर सेम है, ठीक है, ये लेंथ है, सपोज एक ए लेंथ है एंड ए के है बेस, ठीक है। तो एक ए फिक्स्ड है, ये सिर्फ एक बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब देखो सपोज 1 यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो एरिया कितना बढ़ेगा 1 स्क्वायर यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है मतलब 2 स्क्वायर यूनिट, ऐसे बढ़ेगा ना एरिया। ये एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर फॉर्मूला, ये तो सीधा सीधा ऐसे ही बढ़ेगा, मतलब ये स्ट्रिक्टली बढ़ेगा। तो देखो देखो तीनों ये जो स्टेट हो, ये तो पूरा के पूरा स्ट्रेट लाइन वाइज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। तो इसका तो चारों के चारों ऑप्शन में ही स्क्वायर का जो है वो स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हम लोग।
ना एरिया का केस देखो, ट्रायंगल का केस देखो। देखो फर्स्ट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है तो एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइट, तो यहाँ से बेस हम लोग ए से डी में जा रहा है, डी में बी में जा रहा है, मतलब पूरा के पूरा ही इंक्रीज हो रहा है, तो बेस से कोई मतलब नहीं है। हाइट देखो जब यहाँ पर है बढ़ रहा है, धीरे धीरे हाइट बढ़ रहा है, तो डी तक मतलब डी पॉइंट तक हाइट सबसे ज्यादा होगा, फिर डी से जब बी की तरफ जाएगा तो हाइट धीरे धीरे फिर से कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो वन एटम जो इंक्रीज होगा एरिया बढ़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा के पूरा एरिया कवर हो जाएगा, एरिया जो होगा सर्कल का वो एरिया तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एंड एरिया का जो इंक्रीज का जो मतलब रेट होगा वो एक पॉइंट तक बढ़ेगा, एरिया का इंक्रीज का रेट एक टाइम तक बढ़ेगा एंड देन वो धीरे धीरे कमेगा। तो ऐसा ग्राफ देखना होगा जिसमें बढ़ रहा है, मतलब एक डायरेक्शन से बढ़ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है, फिर से एरिया बढ़ रहा है बट रेट कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो, ये जो पॉइंट डी है, डी तक देखो ये तो एरिया बढ़ रहा है पूरा के पूरा, मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो बढ़ रहा है, इसके इस तक बढ़ रहा है देन ये एरिया बढ़ रहा है बट एरिया का जो इंक्रीज का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ही इसका प्रॉपर ग्राफ है, ठीक है। अच्छे से देखो डी तक एरिया पूरा के पूरा बढ़ रहा है, जितना हाइट बढ़ रहा है अप टू डी, एंड आफ्टर डी एरिया बढ़ रहा है बट जो रेट है हाइट मतलब जो बढ़ने का जो इंक्रीजनेस का जो रेट होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है सीधा सीधा। देन बी सी डी आप देख सकते हो, यहाँ पर सी ऑप्शन में तो सीधा सीधा डायरेक्ट बढ़ रहा है ट्रायंगल, तो ये तो कभी नहीं बन सकता है। देन यहाँ से देखो डी तक क्या बढ़ रहा है, डी तक धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ये पूरा उल्टा केस दिया है। मतलब जब ये सिचुएशन होता यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है हाइट, तो इस केस होता, ये केस होता, ठीक है। ये जो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है देन इंक्रीजनेस बढ़ रहा है, इंक्रीजनेस जो एरिया का इंक्रीजनेस हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो ये केस यहाँ पर गिवन है, ये भी करेक्ट नहीं है। सिमिलरली ये तो कनेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पूरा के पूरा इंक्रीज ही दिखाया है, ठीक है।